Allied Schools, a project of Punjab Group of Colleges. Halani Campus, near National Highway Road, Halani, Tehsil Mehrabpur, District Nowshera Firoz. This is the index, and today we are going to read the Vice Caliph. The Vice Caliph. The Vice Caliph. The Caliph Harun Rashid was known and respected for his justice and wisdom. At night, he would disguise himself as a common man and go through the streets of Baghdad. He would mingle with the common people in order to gain first-hand knowledge of their difficulties and problems. खलीफा हारून रशीद ने अपनी इंसाफ पसंदी और दानाई से शोहरत और एहतराम पाया। वो रात को आम आदमियों में मिल जाता था और उनके मसले हल करता था। वो अपना भेष बदल के बगदाद की गलियों में निकल जाते थे और उनका कोई भी मसला होता तो उनसे पूछते, उनसे बातें करते और ऐसे उनको सारे मसले आम लोगों को के पता चलते थे। One day when he was holding court, two men were brought before him. One of them was well dressed and appeared to be well-to-do, respectable citizen, while the other seemed to be a beggar, because he was in rags. एक दिन वो जब अपना कोर्ट चला रहे थे तो दो आदमी उसके सामने आए। उनमें से एक अच्छे कपड़े पहने हुआ था और लग रहा था कि एक इज्जतदार शहरी है, और दूसरा जो है वो गदागर नजर आ रहा था और फटे पुराने कपड़ों में था। These two men were holding between them a beautiful white horse. ये दोनों आदमी एक इंतहाई खूबसूरत घोड़ा पकड़े हुए थे। The Qazi approached the Caliph and said to him, काजी खलीफा की तरफ आया और उसने कहा, O leader of faithful, I have brought before you a dispute which I could not settle. It is difficult case, but I am certain that with your knowledge and wisdom you will pronounce a just decision. ऐ अमीरुल मोमिनीन, मैं आपके सामने एक मसला लाया हूँ, उसको मुझे पता है आप अपनी अकल और समझदारी से हल कर देंगे, लेकिन ये मसला मुझसे हल नहीं होता। What is a dispute? asked the Caliph. झगड़ा क्या है? खलीफा ने कहा। These two men here are fighting over this horse. ये दोनों आदमी इस घोड़े के ऊपर झगड़ा कर रहे हैं। Each one of them claims and swears that this horse is his. दोनों आदमी ये कह रहे हैं कि घोड़ा मेरा है। Step forward, the Caliph ordered the well-dressed man, and let's hear what you have to say. आगे आओ, खलीफा ने कहा उस अच्छे कपड़े पहने हुए आदमी को कि देखते हैं तुम क्या कहते हो। The man said to Caliph, उस आदमी ने खलीफा से कहा, O leader of the faithful, I beg to believe me that whatever I say in your presence shall be the truth. एक खलीफा मोमिनीन, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि मैं जो कुछ भी कहूँ उसको सच माना जाए। This morning, आज सुबह, when I was riding to the city, I saw this beggar limping along ahead to me. जैसे ही मैं शहर की तरफ आ रहा था, मैंने इस फकीर को देखा लंगड़ाते हुए मेरी तरफ आया। On hearing the sound of my horse hoof, he turned round and motioned to me to stop. मेरे घोड़े के पैरों की आवाज सुन के वो मेरी तरफ मुड़ा और आया, कहा कि रुक जाओ। I pulled the reins of my horse. He begged me to give him a ride up to the city gate. मैंने अपने घोड़े का लगाम खींचा और इसने मुझे कहा कि मेहरबानी करके मुझे शहर के दरवाजे तक छोड़ा जाए। He was lame, वो लंगड़ा था। I felt sorry for him, मुझे दुख हुआ इसकी इस हालत पे। So I pulled him up behind me on the horse, और मैंने इसको खींच के अपने घोड़े के ऊपर बिठा दिया। When we reached the city gate, I stopped and turned round to help him get down. जैसे ही मैं शहर के दरवाजे तक पहुंचा तो मैंने घोड़ा रोका और उसको कहा कि नीचे उतर जाओ। He refused to dismount. I was puzzled and gently told him to get down because we had reached the city gate. इसने घोड़े से उतरने से इनकार कर दिया। मैंने इसको समझाया, लेकिन मैं परेशान था कि आखिर ये ऐसे क्यों कह रहा है।
हालांकि हम शहर के दरवाजे तक पहुंच चुके थे। He said, "Why should I get down?" इसने कहा, मैं क्यों उतरूं? I gave you a ride and now you want to rob me of my horse. और उसने मुझे कहा कि मैं क्यों उतरूं? तुम मेरा घोड़ा मुझसे छीनना चाहते हो? Then the beggar limped forward and said, उसी में वो फकीर आगे बढ़ा लंगड़ाते हुए, और लीडर ऑफ द फैक्टफुल, यू आर द हेल्पर एंड गार्डियन ऑफ द पीपल, पुअर पीपल। ओ अमीर उल मोमिनीन, आप मददगार हो और संभालते हो गरीब लोगों को। यू आर अ वाइज एंड जस्ट कैलिफ, आप एक समझदार खलीफा हो। हैव पिटी ऑन मी एंड सेव मी फ्रॉम द क्रूएलिटी एंड जस्टिस ऑफ दिस रिच मैन, मुझ पे रहम खाओ और इस अमीर आदमी की जुल्म से मुझे बचाओ। आई कैन स्वेयर दैट दिस हॉर्स बिलोंग्स टू मी, मैं कसम खाता हूं ये घोड़ा मेरा है। यू मस्ट बी थिंकिंग like everybody else in the court, how a beggar like me can afford to buy and keep such a fine horse. आपको भी यही लगता होगा जैसे यहाँ पे मौजूद दूसरे लोगों को लगता है कि मुझ जैसा फकीर इतना अच्छा घोड़ा कैसे रख सकता है। It is because of this horse that I am in rags. अगर मैं आज इन फटे पुराने कपड़े में हूँ तो इसकी वजह सिर्फ ये घोड़ा है। Whatever money I had, I spend on this horse. मेरे पास जितना भी पैसा होता है मैं इस घोड़े पे खर्च कर देता हूँ। I noticed this man walking along the road. मैंने इस आदमी को नोटिस किया कि रोड की साइड पे चलता हुआ आ रहा है। When I came close to him, he stopped me and requested to lend him my horse, for he was in a great hurry to reach the city. इसने मुझसे इल्तिजा की और कहा कि रुक जाओ, अपने घोड़े को रोको, मुझे लग रहा था कि ये बहुत जल्दी में है शहर पहुंचने के लिए। Of course, I could not lend my horse to a complete stranger. सारी बातें मैं किसी अजनबी को अपना घोड़ा नहीं दे सकता था। Could I? Instead, I let him ride my horse while I sat behind him. इसे मैंने बेहतर समझा कि मैं इसको अपने घोड़े पे बिठा लूं अपने साथ। As we reached the city gate, जैसे हम शहर के दरवाजे तक पहुंचे, he asked me to get down and leave the horse to him. इसने मुझे कहा कि नीचे उतर जाओ और ये घोड़ा मेरे हवाले कर दो। Such a fine horse should not belong to a beggar. इतना बेहतरीन घोड़ा किसी फकीर का हो ही नहीं सकता। He said, उसने कहा, Now be off and don't you mention it to anyone. अब नीचे उतर जाओ और ये बात किसी को बताने की जरूरत नहीं। And even if you do, अगर तुमने किया भी तो nobody is going to believe you. कोई भी तुम पे यकीन करेगा नहीं करेगा। Now, sir, I beg you to save me from this robber and restore to me what is my own. Sir, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि मुझे ये अपना घोड़ा वापस मिल जाए। I think this case is not very difficult to decide, said the Caliph to the Qazi. मुझे नहीं लगता कि ये केस इतना कोई मुश्किल है। खलीफा ने काजी को कहा, I shall decide it in a minute. मैं इसको 1 मिनट में हल कर सकता हूँ। Tell these men to place their hands on the horse one by one. Let the beggar first. ऐसा करो कि इन दोनों आदमियों को कहो कि घोड़े पे एक एक करके हाथ रखें, लेकिन पहले फकीर को कहो कि आगे बढ़े। When the beggar touched the horse, it winced as if it did not like the touch of his hand. जैसे ही उस फकीर ने घोड़े पे हाथ रखा तो वो एकदम से उसने झुर्झुरी ली, गोया उसको उसका हाथ लगाना पसंद नहीं आया। But at the touch of the rich man's hand, the horse snorted and neighed with pleasure. लेकिन अमीर आदमी के छूने पर घोड़े ने नथनों से आवाज निकाली और खुशी से हनहनाने लगा। This horse belonged to him, pronounced the Caliph. Give the horse to its master. ये घोड़ा इस अमीर की मिल्कियत है। खलीफा ने फैसला सुना दिया, घोड़ा मालिक के हवाले कर दिया जाए। Then the Caliph turned to the beggar and said, उसके बाद खलीफा फकीर की तरफ मुड़ा और कहा, You are a liar and wicked man. तुम बदमाश हो, झूठे हो। You try to rob an honest and respectable citizen. तुमने एक शरीफ और मोअज़्ज़ज़ शहरी को ठगने की कोशिश की है।
You deserve severe punishment, but I shall be merciful. तुम सख्त सजा के मुस्तजिब हो, लेकिन मैं If you beg forgiveness if this time gentleman here, अगर मैं तुम्हें माफ करता हूं अगर तुमने इस gentleman से अभी माफी मांगी. The rich man readily forgave the beggar and feeling sorry for him, अमीर आदमी ने उसी वक्त उस फकीर को माफ कर दिया और उसको दुख हुआ उसकी इस हालत पे. Took out his purse and gave him a handful of gold coins. उसने अपना बटवा निकाला और मुट्ठी भर के सोने के अशरफियों को की उसको दी. This noble action of the rich man pleased everybody in the court. अमीर के इस शरीफाना फ़ैल से दरबार में मौजूद हर शख्स खुश हो गया. Now exercise questions. Comprehension. यहाँ पे आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे. What was Caliph Harun Rashid known and respected for? खलीफा हारून रशीद किस वजह से जाने जाते थे? खलीफा हारून रशीद अपनी अकल और दाने की वजह से जाने जाते थे. Why did he go through the streets of Baghdad at night? वो बगदाद की सड़कों पर रात को क्यों निकलते थे? वो इसलिए निकलते थे कि वो आम आदमियों के मसले परेशानियां पता कर सकें, इसीलिए वो लोगों के बीच में घुल मिल जाते थे. अब है सवाल नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट डिड द काजी से टू द कैलिफ? काजी ने खलीफा को क्या कहा? तो काजी ने खलीफा को कहा कि मैं ये मसला आपके सामने लाया हूं जो कि मैं हल नहीं कर पा रहा. आप अपनी अकल और दानाई से मेहरबानी करके इसका फैसला दें. व्हाट वाज द डिस्प्यूट बिटवीन द रिच मैन एंड द बेगर? अमीर आदमी और उस बेगर के बीच में, फकीर के बीच में मसला क्या था? मसला ये था कि एक खूबसूरत घोड़ा था. फकीर कहता था कि वो मेरा है और वो अमीर आदमी कहता था कि ये मेरा है. ये था इन दोनों के बीच में मसला. अब है सवाल नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट डिड द रिच मैन टेल द कैलिफ? अमीर आदमी ने खलीफा से क्या कहा? अमीर आदमी ने खलीफा से कहा कि मैं ये जो बात अभी कहता हूं वो मेहरबानी करके उस पर यकीन किया जाए. जब मैं गुजर रहा था अपने घोड़े पे तो ये फकीर लंगड़ाता हुआ मेरे सामने से गुजर रहा था. इसने मुझे आवाज लगाई. मेरे घोड़ों की चाप सुनते ही आवाज लगाई मुझे और रुकने के लिए कहा. मैंने जैसे ही अपना घोड़ा रोका हुआ ये कि इसने कहा कि मुझे अपने घोड़े पे बिठाओ. मैंने बिठा दिया, लेकिन जैसे हम शहर के दरवाजे तक पहुंचे तो इसने उतरने से इनकार कर दिया और कहा कि ये घोड़ा मेरा है. अब है सवाल नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट डिड द बेगर टेल द कैलिफ? फकीर ने खलीफा से क्या कहा? फकीर ने खलीफा से कहा कि मैं आज सुबह जैसे ही अपने घोड़े पे इस शहर की तरफ आ रहा था, इस अमीर आदमी ने मुझसे रिक्वेस्ट की, इल्तिजा की कि घोड़ा मुझे दे दो कि मैं सवारी करके शहर तक जाऊं. लेकिन मैंने उसको मना किया और मैंने कहा कि तुम मेरे साथ बैठ जाओ. Why did the beggar refuse to get down from the horse? उस फकीर ने नीचे उतरने से इनकार क्यों कर दिया? वो इसलिए कर दिया इनकार, वो कह रहा था कि इस घोड़े का मालिक मैं हूं. What did the horse do then when the beggar touched it? जब फकीर ने हाथ लगाया घोड़े को तो घोड़े ने क्या किया? The horse winced. घोड़ा झुंझुनाया. उसको जैसे वो बात उसका टच करना पसंद नहीं आया. अब है सवाल नंबर 9. What did the horse do when the rich man touched it? When the rich man touched, जब अमीर आदमी ने उसको हाथ लगाया तो उसने अपनी नथनियों से जैसे आवाज निकाली और वो नथनियों से आवाज निकाली और खुशी से हनहनाने लगा. What did the caliph say to the beggar? खलीफा ने फकीर को क्या कहा? खलीफा ने फकीर को कहा कि तुम झूठे हो, तुमने धोखा दिया है और तुमने इस शरीफ आदमी, इस रिस्पेक्टेबल आदमी का जो है ना घोड़ा लेने की कोशिश की है, ठगने की कोशिश की है और तुम बहुत ही सजा के लायक हो. अच्छा, यहाँ पे कोई एक्सरसाइज बी. लर्न द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द लेसन and use 10 of them in your own words.
यहाँ पे आप कोशिश करें, यहाँ पे इस स्लाइड पे आप देखेंगे 7 है वर्ड्स हमने यहाँ पे यूज किए हैं, लेकिन कोशिश करें आप खुद अपने वर्ड्स में इनको यूज करें। पहला है अफोर्ड, दूसरा है विंस्ड, तीसरा है क्लीन, फोर्थ वन इज पजल्ड, फिफ्थ वन इज प्रोनाउंस, 6 डिस्गाइज, 7 डिस्पाउंड। यहाँ पे है कुछ और जुमले हमने बना दिए हैं। वर्ड्स आपको मैं बता देती हूँ। नंबर 8 इज डिस्प्यूट, नंबर 9 इज लैंड, नंबर 10 इज लिम्ब, नंबर 11 इज मोशन, नंबर 12 इज नीड, 13 is snowed, 14th is swear। कोशिश करें आप अपने जुमले बनाएं, और कहीं पे समझ में ना आए तो आप यहाँ पे दे सकते हो। अब ये एक्सरसाइज बी, by using these words given below and changing the form when necessary complete the following sentence। यहाँ पे ग्रामर यूज हुई है, यहाँ पे past tense यूज हुआ है, present है, continuous tense है। आप देख सकते हो वर्ड्स क्या क्या है, क्राउड, लिम्ब, अटर, डिस्गाइज, क्लेम, मोशन, गैलप। तो यहाँ पे इनको आप जुमलों में अलग अलग जगह पे जहाँ पे आप फील करते हो कि कौन सा फॉर्म आना चाहिए, आपकी समझ के हिसाब से वहां पे यूज करो। लेकिन पहले आप अपना टेक्स्ट बुक खोलोगे, वहां पे आप देखोगे, अपना रफली उसको लिखोगे, फिर यहाँ से आप टैली करोगे कि आपने सही किया है नहीं किया। ये बाकी जो पीछे रहते थे यहाँ पे वो वर्ड्स लिखे हुए हैं, उनके फॉर्म चेंज करके। नंबर 8, नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14। जी अब है एक्सरसाइज सी, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग सुटेबल फ्रेजेस फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो इन देयर फॉर्म। यहाँ पे फ्रेजेस कौन कौन से हैं? बी ऑफ, पुट अप, fight over, fight for, feel sorry for, well to do, well off, feel ashamed of। ये भी आपको पहले आप अपनी टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज खोलें, उस पे जहाँ पे आप समझते हो कि यहाँ पे ये फ्रेज आना चाहिए वहां पे लगाएं, उसके बाद आप जो है यहाँ पे आप टैली कर सकते हो। आधे पिछली वाली स्लाइड पे थे और आधे यहाँ पे हैं। टोटल नंबर है 13। अच्छा जी, अब है डी, एक्सरसाइज डी, मेक नाउन्स फ्रॉम द वर्ब गिवन बिलो एंड यूज बोथ नाउन एंड वर्ब्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन वर्ड्स। यहाँ पे आपको सारे वर्ब्स मिलेंगे। बैग, लिव, लैंड, बिलीव, प्लीज, स्पीक। और यहाँ पे है सारे नाउन, बेगिंग, लाइफ, लोन, बिलीव, प्लेजर, गिफ्ट, स्पीच। आगे चलते हैं। यह है एक्सरसाइज ई, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द verbs placed in brackets at the end of each sentence। आप टैली कर लें टेक्स्ट। ये देखें जी, ये है डी, कंपोजिशन, डिस्क्राइब द 10 sentences the dispute between the rich man and the beggar। 10 जुमले लिखने हैं आपको, सेंटेंसेस बनाने हैं। अमीर आदमी और उसके बैगर के बीच में मसला क्या था, किस की बात के ऊपर झगड़ा था। आप 10 जुमले लिखेंगे, वो जुमले लिख के सेंटेंसेस बना के आप हमें ईमेल करेंगे याद से। हम देखना चाहते हैं कि हमने जो आपके लिए लेसन रेडी किया है कि आपको समझ में आया नहीं आया, आपको कितना पसंद आया। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिएगा। और अब ये 10 सेंटेंसेस आप याद से हमें ईमेल करेंगे कि आपने कैसा समझा, कैसा लिखा, और जो भी मसला हो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, वरना ईमेल करके आप हमसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।